Welcome to the channel. It's me, Yami. I'm here with one more scholarship video for you guys. But before that, I would like to mention जो भी पास्ट में स्कॉलरशिप्स बनी है उनकी लिंक्स प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर यू गो थ्रू द लिंक्स. जिन किसी में भी आप एलिजिबल हो, डू अप्लाई. जिन किसी में भी जो मर्जिंग का स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो आई हैव मेंशन दैट कि आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो. अगर आप मर्ज नहीं कर सकते स्कॉलरशिप, स्टिल आई हैव मेंशन that you can't merge the scholarship. Okay, so यही वाली कमेंट्स ज़्यादातर आती है कि मैम इसके साथ ये अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं. तो I have mentioned it clearly into the respective videos. Coming to today's videos, it's about NSP scholarship, National Scholarship Portal पे ही है वो, for Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students 2022-23. Okay, so coming to the details of the scholarship now. See, this particular NSP Central Sector Scheme of Scholarship is an initiative taken by the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. Government ने निकाला है ये scholarship for this particular year for class 12th pass students who are studying in college and university. जिन्होंने अपना 12th pass कर चुके हैं into the year of 2022 and are into the first year of engineering, they can apply. The scholarship aims to provide financial assistance to the students from poor family to meet their day-to-day expenses. The selected candidates will receive up to 20,000 per annum. एक साल में they'll receive an amount of 20,000, which is a good amount. You can absolutely apply. Last date को ध्यान में रखते हुए go through the scholarship. 31st of December is the last date. Eligibility क्या है? Should be pursuing its regular courses at institutes recognized by All India Council AICTE. जो recognized universities and colleges हैं उनमें enrolled होना चाहिए बच्चा, respective regulatory bodies concerned, and should be having scored 80 percentile से ज़्यादा in the successive candidate in the relevant stream from the respective board of 12th or 10 plus or equivalent boards. Okay, उनमें 80 percentile से ज़्यादा होना चाहिए. जो एनुअल इनकम की बात है, एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 4.5 lakhs and not be a recipient of any other scholarship. You can't merge this scholarship with any other scholarship. If you are already applied anywhere else for the scholarship and it is being sanctioned, then you can't apply over here. Okay, so this is to be taken note. And जो लोग भी डिस्टेंस मोड पे कर रहे हैं डिग्री कोर्सेज नॉट एलिजिबल, डिप्लोमा वाले also not eligible. Okay, clear cut note में उन्होंने mention कर रखा है. अभी जो benefit है वो depend करता है आप कौन से कोर्स पे हो, उस हिसाब से they are sanctioning the scholarship amount. यहाँ mentioned है graduation level पे हो तो 10,000 per annum for the first 3 years of the college. पहले 3 साल के लिए you'll be getting 10,000 per annum. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि मास्टर्स डिग्री अपनी ले रहे हो तो 20,000 पर एनम की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी. If you are into 5 years professional course like architecture का ले लो और integrated course जहाँ पे BTech MTech combined courses होते हैं, अगर वो courses में आप हो and if you have enrolled and applied for the scholarship, if you are selected, you will be getting 20,000 per annum in the 4th and the 5th year. जो फाइनल और सेमीफाइनल ईयर्स जो होते हैं, प्री फाइनल और फाइनल, उनमें आपको ये मिलेंगे 20,000 पर एनम. एंड फॉर द टेक्निकल कोर्सेज सच एज BTech वाले जो भी कोर्सेज अप टू ग्रेजुएशन लेवल, दिल बी गेटिंग 12,000 पर एनम फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 20,000 in the 4th year. In the 4th year you will be getting the maximum amount of 20,000 and in the first second third year you will be getting an amount of 12,000 12,000. ठीक है, so this is it. What are the documents required? आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन ना हो तो उन्होंने ऑप्शन दिया अबाउट वोटर आईडी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पान, पासपोर्ट दे सकते हो. 12th की मार्कशीट चाहिए होगी एंड इनकम सर्टिफिकेट टू मैच द एलिजिबिलिटी. ओके, कैसे अप्लाई करना इज द प्रोसीजर गिवन ओवर हियर. मैं स्टेप वाइज आपको क्विकली समझा देती हूँ. अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हुए आपको जाना है एप्लीकेंट कॉर्नर पे, जहाँ पे आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे. अभी करके भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ, डोंट वरी, बट विल जस्ट गो थ्रू द स्टेप वंस. नाउ क्लिक ऑन द क्लिक हियर फॉर द अदर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड ऑन NSP एंड देन गो विद द कंटिन्यू बटन. ये करने के बाद आपको डोमिसाइल कौन से स्टेट के आप हो, मतलब आपका कि परमानेंट एड्रेस कौन से स्टेट का है, दैट इज द स्टेट ऑफ डोमिसाइल.
ओके वो मेंशन करना है, स्कॉलरशिप कैटेगरी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ के बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे जिसपे आएगा आपका OTP एंड देन यू कैन फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन। लुकिंग टू द प्रोसीजर नाउ, अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर पोर्टल ऑफ NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। With this portal, if you slide down, you'll have applicant corner over here, जहाँ पे आपको जाना है new registration पे। Once you are done with this, for academic year this, तो yes, तो we'll just have to click here, and again the procedure is being mentioned over here, और कौन से कॉलम में क्या भरना है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। अगर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो जैसा कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है इन योर 10th एंड 12th मार्कशीट, डिट्टो सेम ही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना रहेगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, एज आई हैव मेंशन्ड, द प्लेस वेयर यू हैव योर परमानेंट एड्रेस इज योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। स्कॉलरशिप कैटेगरी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, फॉर 10th वाला, 10th से पहले वाला इज योर प्री मैट्रिक, उसमें हम नहीं जा रहे, हमें पोस्ट मैट्रिक पे जाना है। जो भी बच्चे मेरा वीडियो सुन रहे, जो पढ़ रहे फ्रॉम 1st to 10th, if you want to apply into the scholarship you also have an option of pre-matric, okay, but major crowd on my channel is for post-matric. Then we have name of student, mobile number, email ID, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, जहाँ पे आ जाएगा आपका आधार कार्ड। ये मोबाइल नंबर का बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से भरना, क्योंकि इसी पे सारा आगे का कम्युनिकेशन आपको होगा, whether you have got scholarship, what are your ID, what are your OTPs, password, every detail will come on your mobile number. तो मेक श्योर आप वही मोबाइल नंबर मेंशन करो जो कि आप लंबे समय तक अपने साथ रखने वाले हो, ठीक है। देन यू हैव बैंक अकाउंट डिटेल्स, यस, दैट टू मेंशन वेरी करेक्टली, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट सैंक्शन होगा विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक डायरेक्टली, तो डिटेल्स शुड बी मेंशन राइटली। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएगा आपका आधार कार्ड एंड दैट्स इट। यस, मोबाइल नंबर पे आपका ये आ जाएगा ID, पासवर्ड, ये मेंशन किया उन्होंने, ये टिक करते हुए यू नीड टू गो विद द कंटिन्यू एंड ये आ गया आपका एप्लीकेशन। जो कि कॉलम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वही सारी कॉलम्स यहाँ पे मेंशन्ड है। यू जस्ट नीड टू मेंशन योर आंसर एंड गो विद द कैप्चा डालते रजिस्टर। एंड यहाँ पे लिखा भी है फॉर द फर्स्ट टाइम लॉग इन OTP विल बी सेंट बाय द NSP ऑन द अबव प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर। So make sure you have your rightly mentioned mobile number, and yeah, this is it for the scholarship NSP. Hope the lucky one gets it, and फॉर्म भरो, अप्लाई करो, तो मेंशन करो इन द कमेंट्स कि मैम आपका वीडियो देखते ही हमने फॉर्म भरा है एंड वी आर वेटिंग फॉर द स्कॉलरशिप टू गेट सैंक्शन। दिस विल मेक मी हैप्पी इवन मोर एंड you know will make me motivated to make much more scholarship videos. So make sure you have the use of the comment section at the best. Bye bye, all the best.